Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to PMDC online lecture room. Dear students, we are going to start chapter number 2, named Differentiation of Second Year Maths. And today our topic is differentiation rules. First of all, we know what is differentiation. The process of finding a derivative of a function is called differentiation. We have different rules to find derivatives: power rule, product rule, quotient rule, and chain rule. First one is power rule. Power rule, when power rule is applying, when power is given, variable power has a whole power, we use power rule. D by dx base into p means put the power down, reduces by 1 and again derivative without power of base. This is called power rule. पावर को नीचे उतारें, पावर में से एक कम करें और बेस का अगेन डेरिवेटिव लेने, तो इसे हम पावर रूल कहते हैं. Next one is product rule. Product rule will be used when two function is multiplied form. Let us suppose u equal to f of x and v equal to g of x, then d by dx u into v, first derivative of second plus second derivative of first is called product rule. Now, quotient rule. When two functions in divide form, we use quotient rule. For example, if f of x and g of x are differentiable, then d by dx f of x divided by g of x. F of x represent numerator and g of x represent denominator. Denominator का square, denominator d by dx numerator minus numerator d by dx denominator is called quotient rule. और quotient rule स्पेशली डिवीजन फॉर्म में ही यूज किया जाएगा. नेक्स्ट वन इज चेन रूल. Chain rule means when we have given parametric equations. Parametric equation means we have two equations. If y equal to f of u and u equal to g of x are both differentiable function, then अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो चेन रूल इज dy by dx, dy by du and du by dx. This is called chain rule. Chain rule are very important in annual exam. So keep in mind, when two functions are given, then we apply chain rule. For example, we take some examples. First one is use product rule to find out derivative of the following functions: y equal to x square minus 2 multiply 3x plus 1. Differentiate both sides with respect to x. d by dx y के साथ भी लगाएं, d by dx x square minus 2 3x plus 1. Both are product rule. क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो अब आप इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. तो x और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो ये आपके पास 3 हो जाएगा. कांस्टेंट ऑलवेज इक्वल टू 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा. ये इसी तरह आपके पास रहेगा x स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर मींस पावर रूल 2x हो जाएगा और कांस्टेंट आपके पास 0 हो जाएगा. तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 3 प्लस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2x. सो इट्स मीन दैट we multiplying all these things and we get our required result 9x square plus 2x minus 6, which is the first questions we have used product rule. Now next one is quotient rule. Use the quotient rule to find out the derivative of the following functions: y equal to 3x minus 5 divided by x minus 4. Given that y equal to 3x minus 5, x minus 4,
डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स यहां भी अप्लाई करें, डी बाई डी एक्स यहां भी अप्लाई करें। क्योंकि डिवाइड फॉर्म में है तो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर कहलाता है और ऊपर वाला न्यूमिनेटर कहलाता है। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर वही डिनोमिनेटर ऊपर, डी बाई डी एक्स न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। दिस इज कॉल्ड क्वोशंट रूल। अब क्वोशंट रूल को आगे सिंपली उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। x और x का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट 0 होता है। 3x माइनस 5 x का डेरिवेटिव 1 होता है, 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, ये 0 लिखा हुआ है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 3x माइनस 4 से 3x माइनस 12 माइनस 3x प्लस 5 x माइनस 4 का होल स्क्वायर। So it's mean that our answer is minus 7 divided by x minus 4 whole square, which is our required result. एक बात याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि आप प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल या पावर रूल जो भी यूज करेंगे तो फर्स्ट आप स्टेप जो होगा वो प्रोडक्ट का या क्वोशंट का होगा। उसके बाद हम उसी तरह पावर रूल की तरह ही आगे सिंप्लीफाई करते जाएंगे। उसको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हवाले से। use any suitable rule of differentiation to perform dy by dx of the following function y equal to log, नेचुरल लॉग है x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 स्क्वायर रूट। सबसे पहले आप इस पे लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, लॉग के फार्मूले लगाएं, लॉग x प्लस 1 x माइनस 1 होल पावर 1 बाई 2 लॉग m n, n को नीचे उतारें, लॉग एम एन को n को नीचे उतारें और लॉग m मींस इसको m तस्वर करें, इसको n तस्वर करें, लॉग एम एन n लॉग m। दोबारा इसके ऊपर लॉग का एक और फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है, लॉग n डिवाइड बाय लॉग n, तो लॉग m माइनस लॉग n, ये आपने अप्लाई कर दिए लॉग के फार्मूले। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यहां भी डिफरेंशिएट करें x के साथ, यहां पर भी डिफरेंशिएट आप करें x के साथ। तो 1 बाई 2 लॉग x के साथ भी डेरिवेटिव लगा दें, इसके साथ भी आपने डेरिवेटिव को अप्लाई किया है। लॉग x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई x और x प्लस 1 का डेरिवेटिव अगेन। जनरल चीज ये है कि लॉग x का 1 बाई x और x का डेरिवेटिव अगेन बिल्कुल सेम यहां पर भी है। लॉग x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 और x माइनस 1 का डेरिवेटिव अगेन। x आपके पास 1 हो जाएगा, x आपके पास 1 हो जाएगा, तो 1x प्लस 1 माइनस x माइनस 1, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में x प्लस 1 x माइनस 1 आ जाएगा, तो x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 2 कैंसिल होकर आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे साल आपसे होते रहेंगे। Next one is find dy by dx of the following function in the term of parameter t, means x equal to 1 plus t square and y equal to t cube plus 2t square plus 1. Two equations are given. When two equations are given, we use chain rule. इधर एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, इसके ऊपर आप chain rule इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करें with respect to t because variable t is used. d by dx dt, d by dt, dx by dt, 1 के साथ डेरिवेटिव लगाएं तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, 2 माइनस 1 2t हो गया, तो आंसर आ गया 2t। dx by dt को आप रेसिप्रोकल करें, रेसिप्रोकल इसलिए करें कि चेन रूल में हमें रेसिप्रोकल की जरूरत पड़ेगी, तो dt by dx इक्वल टू 1 by 2t। Now differentiating equation 2 with respect to t, dy by dt, d by dt, दिस इज अ पावर रूल, t क्यूब 3 को नीचे उतारें 3 में से कम करें, t स्क्वायर पावर रूल 2 को नीचे उतारें 2 में से कम करें। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, ये लिखा हुआ है tt माइनस 1 2 2 t2 माइनस 1 कांस्टेंट 0, 3t स्क्वायर प्लस 4t, dy by dt t कॉमन कर लें तो 3t प्लस 4 बाय यूजिंग चेन रूल, dy by dx, dy by dt and dt by dx. This is called chain rule. Already we have discussed in previous slide. dy by dt आपके पास t 3t plus 4 के इक्वल है और dt by dx 1 by 2t के इक्वल है। t से कैंसिल कर दें तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो 3t plus 4 डिवाइड by 2 which is our required result। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई, बेस्ट एग्जांपल हो गई पैरामेट्रिक इक्वेशन मीन चेंज रूल की। Assignment: differentiate. Question 2, find
derivative means dy by dx. Both questions are very important. Thank you very much.